थ्योरम क्या कहती है? इफ द पॉइंट x0 इज ए, चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन लिखता है पहले। Then the differential equation has at least one non-trivial solution of the form where R is defined real or complex। ये रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कांस्टेंट which may be determined and this solution is valid in some deleted interval। ये पता है आपको ये deleted interval क्या होता है? हाँ जी बच्चे, deleted neighborhood सुना है? क्या होता है? वेरी गुड, उस पॉइंट को छोड़ के जो पार्ट होता है उसका नेबरहुड का, दैट इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, वेयर r is greater than 0 about x0, दिस इज डिलीटेड नेबरहुड। इधर लिखना चाहिए था मुझे, about x0, that is mod of x minus x0 greater than 0। अगर मैं इक्वल टू 0 भी कर दूं फिर x इक्वल टू x0 भी आ जाएगा, बट डिलीटेड ले रहा हूँ इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो ये है बच्चे थ्योरम। सॉरी, थ्योरम क्या कहती है? मुझे ना इससे भी एलर्जी होती है, जो धुआं सीधा जाता, इसका डस्ट जाता है। तो आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी, तो अगर आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन का है कोई भी, तो उस रेगुलर पॉइंट के अराउंड ये थ्योरम ये आपको कहती है, ये आश्वासन आपको देती है ये थ्योरम। इट गिव्स यू एश्योरेंस दैट यू आर गोइंग टू गेट द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म। ओके, नाउ दिस आर, दिस guy, this innocent guy, this can be determined in the process, okay, and this solution is valid in the deleted neighborhood of that regular singular point x0। So let's see how we can apply this theorem if any differential equation is given to us, because that will give us some insight into this theorem, because we are not going to give the proofs of the theorem. There are many theorems that will come our way, but we will be just mentioning them and making use of them. Actually, we are interested in the power series solution about regular singular point. So there are certain things which we have to keep in mind
So this was one of those things, this theorem. Now here is the example. Consider the differential equation अब इसकी इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होगी? is this is your equivalent normalized form. Now this is P function, this is Q function. If you look at it carefully, you will be able to see that x equal to 0 is a singular point. Of course, because both these functions fail to be analytic at x equal to 0. First. Secondly, if you find this x px and x square qx, then you will be able to see that both of these are analytic. Both of these are analytic at x equal to 0, giving us the license to conclude that x equal to 0 is the regular singular point. Now I will not be doing these small things here because we have done all these things in quite a bit of detail yesterday. In fact, our yesterday's lecture was totally devoted to the basic definitions. So I can conclude from, in the light of yesterday's lecture, I can say clearly. Now this word clearly is really clear here, it's not unclear thing. So clearly x equal to 0 is a regular singular point of डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट. अब लगाइए थ्योरम इस पे. थ्योरम कहती है आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगी. आप मुझे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दो, मैं आपको कंक्लूजन दूंगी. ठीक है, बोलो स्वतंत्रता की खातिर, बोलो स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा. तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा. खूनी हस्ताक्षर पढ़ा है? सुभाष चंद्र बोस जी की लिखी हुई कविता, सरस भारती भाग 1-2 किसी ने नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा है, शायद 8th-9th तक हिंदी मैंने पढ़ी है. सो क्लियरली x equal to 0 is the regular singular point of differential equation 1. So we have given that regular singular point to the theorem, and the theorem will present us with the beautiful conclusion. What is that? If you ask theorem, then the theorem will be replying in this fashion. So what we can conclude? So in view of theorem का नाम 1 लिख दो, theorem 1. So in view of theorem 1, एग्जाम में नहीं लिखना मेहरबानी करके, ठीक है, वहाँ पे स्टेट करना थ्योरम को. अरे बोलोगे सर नंबर कम आ गए तो ये क्या हो गया. So in view of theorem 1, which you have to state in exam, of course, what will be we will be having, one has, चलो, the differential equation one has, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होगा. एटलीस्ट वन नॉन, क्या पढ़ा आपने क्या पढ़ा? ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म. क्या था ये फॉर्म उसकी? मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट की पावर x माइनस एक्स नॉट क्या है पे 0 की पावर r, समेशन n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cn x माइनस 0 की पावर n.
अब क्या लिखना है, ये 0, इसको भी हटा दो, मॉड ऑफ x की पावर r दिस समेशन। और फर्दर आपको क्या लिखना है इसमें, where solution is valid in कहाँ पे, यहाँ पे, where r is greater than 0। बात समझ आई? All consider second example, consider another example, namely x square into x minus 1 का whole square d square y by dx square d square y by dx square plus 2 into x minus 2 dy by dx plus x plus 1 into y equal to 0। क्लियरली आप चेक कर लेना, x इक्वल टू 2 क्या होगा, इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इज ए रेगुलर। I think we did it yesterday. Even if we haven't done that, then still you must be in position to conclude this. So clearly x equal to 2 is a regular singular point of this differential equation first. Therefore by theorem 1, which you have to state, of course, the differential equation first has in at least, देखो एक हाँ जी, हाँ, at least one non trivial solution। हर शब्द गणित में जो है ना उसका महत्व होता है, ये याद रखना। वट एवर यू आर राइटिंग इन मैथमेटिक्स, इट हैज़ गॉट सम मीनिंग। दैट्स वाई आई टेल वन थिंग टू यू गाइज टाइम एंड अगेन, दैट यू कैन नॉट एड एनीथिंग नॉनसेंस टू मैथमेटिक्स, नॉर कैन यू टेक एनीथिंग आउट ऑफ मैथमेटिक्स। So there is a precise language in mathematics which you have to actually get adopted to. So theorem का एक एक शब्द जो है वो महत्व रखता है। The differential equation has at least one non-trivial solution of the form simply we have to replace x naught by 2, छापना ही है और क्या करना है, x minus 2 की पावर r summation n goes from 0 to infinity, बोलो बच्चे, 2 की पावर n, फाइन। वैलिड इन mod of x minus 2 is greater than 0, strictly less than r, where r is strictly greater than 0. Now this is the solution about, उसमें भी लिख देना x equal to 2, this is here, जो भी था उसको लिखना है about x equal to 0. Is that fine? अब देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए बच्चे, x equal to 0 भी एक सिंगुलर पॉइंट है, बट वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। x equal to 0 क्या है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्यों है इरेगुलर, क्योंकि अगर आप x इंटू पी एक्स और x स्क्वायर इंटू क्यू एक्स करोगे, am I right? Yes, sir. क्या मिलेगा, तो सर उसमें एक नाम बनता है जो नाम डिफाइन, क्यों 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 बच्चे,
जस्ट अ सेकेंड, एम आई सेइंग राइट? अच्छा हाँ, बेसिकली मैं इसको देख रहा हूँ, हमने इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म को देखा, दैट्स व्हाई आई गॉट अ बिट। तो लिखो बच्चे, एक खुद से लिखो सेंटेंस। चलो लिखना तो पड़ेगा मुझे यूट्यूब ऑडियंस के लिए। क्लियरली x इक्वल टू 0 is an irregular singular point of, लिख दो क्या लिखा था हमने फर्स्ट, सो थ्योरम डज नॉट अप्लाई, सो थ्योरम डज नॉट अप्लाई, बस बात खत्म। थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब आपके पास क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। 2 और 2 4 की तरह बात बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं आउटलाइन ऑफ मेथड ऑफ फ्रॉबनियस। देखिए बच्चे, स्टेप 1 सीधा लिख दो 1। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप होगा लेट x नॉट, वी विल स्टार्ट विद द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। दर्द होता है बाजू में लिखने से, अब आदत मत रही देर के बाद। लेट x नॉट बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी और अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि आप रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की पुष्टि बोलते हैं, पुष्टि बोलते हैं ना, पुष्टि कर सकते हो, ठीक है। सो प्लस a1x dy by dx प्लस a2x y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम ये पुष्टि करेंगे कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। उसके बाद वी सीक सॉल्यूशंस बाय थ्योरम, वी सीक सॉल्यूशंस कहाँ पे, इन हियर, वी सीक सॉल्यूशंस इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के, y इक्वल टू समेशन, शाबाश बोलो बच्चे, n गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स नॉट की पावर n प्लस r, ठीक है ना, x माइनस एक्स नॉट की पावर n प्लस r, वेयर c नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस बी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या है, नहीं बच्चे, बस c नॉट नॉन जीरो होना चाहिए ना। हाँ जी, क्या कंडीशन c नॉट, cn क्यों बोल रहे हो, cn में तो सभी कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, कोई कोफिशिएंट 0 भी नहीं बच्चे, ये कॉमा लिखा है ना मैंने, कॉमा नहीं दिख रहा आपको, कॉमा दिया है ना यहाँ पे, ये अलग से लिखा है, c नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ए कंडीशन, गॉट इट। प्रॉब्लम तो नहीं कोई, इज दैट ओके, ठीक है बच्चे।
सेकंड स्टेप पे आइए। उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट दिस सेकंड टर्म बाय टर्म। अच्छा आप यहाँ बोल रहे हो बच्चे, सॉरी, कभी कभी ना आपके इनके चेहरे से मुझे लग रहा था कि ये कुछ परेशान है। मेरे जवाब के बाद भी ये परेशान थे, लेकिन बोल नहीं पाए उसके बाद। अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, ओके। मैं कह रहा हूँ ये दीज आर प्रिंटिंग मिस्टेक्स, मैं डेलिबरेटली नहीं करता, कभी छूट जाता है, इसे लिख दिया करो। डिफरेंशिएटिंग सेकंड टर्म बाय टर्म, वी हैव dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाए, n goes from 0 to infinity n plus r cn x minus x naught की पावर n plus r minus 1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव ऐसे हो जाएगा n प्लस आर माइनस 1 cn, हाँ जी बच्चे, x माइनस एक्स नॉट की पावर क्या होगी बच्चे, -2। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। पहले स्टेप में हम सिंगुलर पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हमारे लिए क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन किस टाइप का हम ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद हम बेसिकली सॉल्यूशन हमने ढूंढा नहीं है, अभी हमें सिर्फ सॉल्यूशन का एक आप कह सकते हैं आकार हमें पता चला है कि सॉल्यूशन इस तरह का होगा, बट सॉल्यूशन तब हमें मिलेगा ना जब CNs मिलेंगे, जब हमें R मिलेगा, ठीक है।